टैरो कार्ड रीडिंग, हाउ डिड इट हैपन टू यू? मतलब अचानक से क्यों आपको ऐसा लगा that you should take it? Actually, it is not अचानक. It's been more than a year. It's just कि मैंने इतना ज्यादा ओपनली उसके बारे में बहुत बात नहीं की थी, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं रेगुलर रीडिंग्स कर सकूं. तो मैंने 1-1.5 साल पहले शुरू की थी. एंड तब मैंने शुरू की थी तब टाइम्स ऑफ इंडिया, मतलब बॉम्बे टाइम्स ने ही सबसे पहले ये न्यूज ब्रेक की थी. और तब मैंने काफी रीडिंग्स कुछ महीने की. फिर मैं काम में और अपनी चीजों में इतनी बिजी हो गई कि मैं बहुत कम रीडिंग्स ले पा रही थी. बट नाउ आई थिंक सिचुएशन ऐसी है ऑल ओवर द वर्ल्ड की लोगों के सवाल बहुत हैं, लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं. तो मुझे काफी मैसेजेस आ रहे थे. पीपल वर ट्राइंग टू connect with me on the number that is provided, that they want me to start reading again, या जिनको लग रहा था कि मैं अभी भी करती हूँ तो वो बार बार पूछ रहे थे आप दोबारा कब करेंगे. So I felt that if this is an indication, a sign that people want to ask me questions, तो मुझे ना नहीं बोलना चाहिए. फिर मैंने इसे अब वापस जो एक थोड़ा सा बैक बेंच पे रख दिया था, उससे थोड़ा सा वापस फोरग्राउंड में लेकर आई. और अब because I'm doing it, so I try to reach out as much as possible to my fans that they can connect with me again for that. What kind of questions you do? किस चीज में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है लोगों की? सबके अपने अपने अलग अलग किस्म के क्वेश्चंस होते हैं. किसी की पर्सनल लाइफ से होती है तो किसी की प्रोफेशनल लाइफ पे होती है. सवाल तो है अनेक अनगिनत सवाल होते हैं. और it just more or less I just try to show them a positive side apart from my reading. And I feel very happy जब आखिर में वो satisfied होकर या ये कहते हैं that they felt very good after the reading, when I get good messages as a feedback. So it's a very nice feeling, a positive feeling that अपनी तरफ से जो भी थोड़ा बहुत contribute मैं कर सकी उन्हें बेहतर feel करवाने में, I did that. So the questions are obviously some are very personal questions, so I can't talk about them. But yeah, people have lots to ask. And tarot gives a good guidance, so I'm happy that I'm able to help them. Okay, so any funny off-the-screen incident from Kumkum? This question is asked by Korantanali Rajput. Okay, Korantanali Rajput. इस वक्त ऐसे कुओ सुनते ही पहले तो लगता है क्वारंटीन बोलने फनी इंसिडेंट्स. कुमकुम में तो बहुत फनी इंसिडेंट होते थे क्योंकि मैं और हुसैन वी वर लाइक टॉम एंड जेरी. मतलब मेरा और हुसैन का इक्वेशन ही टॉम एंड जेरी था. मैं उसे बहुत तंग करती थी और हम लोग बहुत मस्ती करते थे साथ में. सो ऐसा एक इंसिडेंट बता पाना बहुत मुश्किल है. बट ऐसा मुझे धुंधला से याद आ रहा है कि आई थिंक once there was some problem in one of the stitches of his clothes and he had to lift me, and when he lifted me उसका कुछ stitch निकल गया था उसके trouser का, and we all started laughing and he ran to the makeup room and he said I am not coming out until you are changing this trouser. So it was a very funny moment for all of us because बड़ा स्टाइल से उसको उठाना था कुमकुम को गोदी में, और जैसे उसने उठाया वैसे ही एक आवाज आई. उसने कहा oh my god I think the stitch came off. So we were like from where? He said, I can't tell. He ran to the makeup room. So it was really funny. Okay. Another question. What is your favorite story track from Kumkum? Okay. Two of them. Equally. I love both of them equally. One was Chanda track. That Kumkum Chanda track when I played double role. I loved playing Chanda so much. I could relate to Chanda more than Kumkum क्योंकि मतलब कुमकुम बहुत रोती थी और Chanda was the funny one और मुझे वो ज़्यादा समझ में आती थी. मैं इतना रोती नहीं हूँ जनरली. तो I really enjoyed playing it and I think audience का भी one of the favorite tracks है because उस टाइम पे TRPs were like skyrocketing. और उसके बाद जब ये कुमकुम सुमित मर जाते हैं और reincarnation होता है तो the new Kumkum was also very funny and I loved playing that reincarnation के बाद वाली कुमकुम. So these two were my equally favorite tracks. जूही दी, आप और हुसैन को कब साथ में देख पाएंगे? खुशबू, आई होप कि हम जल्दी साथ में वापस काम करें और आप लोग हमें साथ में वापस देखें because actually हुसैन and I would love to work with each other again. हमने 7 साल इतनी मस्ती की है कि अब वो चल गया, 15 साल उसकी यादों में रह लिए हैं. वापस मेरे ख्याल से नई मेमोरीज बनाने का टाइम हो गया है. तो let's hope and pray that we do a show together again and you see us together again.
जूही, अभी बहुत सारे शोज का रीरन शुरू हो गया है, बहुत सारे आइकॉनिक शोज वापस आ रहे हैं। आपका कोई फेवरेट शो हो उस एरा का जो आप फिर से देखना चाहेंगी? मैं तो कुमकुम भी फिर से देखना चाहूंगी, तब देखने का मौका ही नहीं मिला था क्योंकि तब हम हर वक्त शूट कर रहे होते थे। सो नाउ इफ कुमकुम कम्स बैक आई विल गेट टू सी एंड आई थिंक आई विल क्रिटिसाइज myself only in the show and I'll try to be better. Okay. Any other show apart from that? Any other show? No, not really. ऐसा कोई Who's show your नहीं favorite show from your childhood? सैलाब। Okay. सैलाब रेणुका शहाने जी थी जिसमें, वो मेरा फेवरेट शो था। आई स्टिल रिमेम्बर Tuesday 8:30 it used to come and I was crazy about it, so I would love to watch that show again. जूही, आप इतने टाइम से टेलीविजन का हिस्सा हैं, आपने इसको कैसे इवॉल्व होते हुए देखा है एंड हैज इट इवॉल्व फॉर बेटर? बिकॉज काफी लोग टेलीविजन को अगर कंटेंट वाइज कहें तो आज के कंटेंट को काफी बुरा मानते हैं, प्रोग्रेसिव नहीं मानते। व्हाट इज योर टेक? I think there is a mix of both. प्रोग्रेसिव शोज भी है, रिग्रेसिव भी है, और ये मिक्स ऑफ बोथ हमेशा रहा है। मतलब लाइफ में भी यही है, अच्छा भी है बुरा भी है। सेम वैसे ही कंटेंट वाइज आई थिंक दोनों तरीके के कंटेंट हैं। ऐसा नहीं है कि प्रोग्रेसिव शोज नहीं बन रहे हैं। आप अगर वेब सीरीज देखें तो बहुत ही प्रोग्रेसिव है वो तो आई थिंक ऑडियंस जितनी वास्ट वैरायटी ऑफ ऑडियंस होती जा रही है उतना ही वास्ट वैरायटी ऑफ कंटेंट होता जा रहा है। सो आई डोंट थिंक कंपेयर करना फेयर होगा। समय के साथ जैसे जैसे मेंटालिटी में बदलाव आ रहा है वैसे लोग नए तरीके के शोज भी बना रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें अब भी थोड़े उस तरह के शोज पसंद है जो वो सालों साल पहले देखते थे, तो वैसे शोज भी बन रहे हैं। अब उसमें से कुछ शोज को साइड में कर देंगे जो एक्सट्रीम रिग्रेसिव शोज हैं, बट देन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। One of your fans wants to know any similarity between Kumkum and Juhi. कुमकुम रीइंकार्नेशन के बाद वाली के साथ सिमिलैरिटी है, रीइंकार्नेशन के पहले वाली कुमकुम के साथ कोई सिमिलैरिटी नहीं। The only similarity I would say is that she was fearless and she would stand for the truth and she would fight for it, and so is Juhi. So आपको जब इतने यंग एज में एक ऐसा आइकॉनिक कैरेक्टर मिल गया, एक ऐसा आइकॉनिक शो मिल गया एंड यू हैव टू लिव दैट कैरेक्टर, क्योंकि तब शोज इतने लंबे चलते थे, 5-5 7 10 साल, और ज्यादा करके उन शोज में जो कास्ट आप लोग होते थे आप इतने यंग एज में होते थे और आपको पूरा टाइम रोना होता था क्योंकि वैसे ट्रैक्स लोगों को पसंद आते थे। हाउ चैलेंजिंग इट वाज? So it was difficult in the initial days because I was new and I had never played a character like that. But I would say साल 1.5 साल के अंदर I got a hang of that character really well. और the credit goes to the team and a lot of credit goes to Hussain because we were so compatible with each other as co-actors that हम एक दूसरे के अंदर we brought out the best in each other as actors. Like initial days में I used to use glycerin and all for crying scenes, but फिर हम इतना उस character में रच बस गए थे that we didn't need the glycerin at all. We would just cry looking at each other in the scene. मतलब चाहे, और giving your 100% used to be our motto even while our back is. So अगर एक शॉट में हुसैन का फेस दिख रहा मेरा बैक है तो भी मैं उसी इंटेंसिटी के साथ क्रूज देखती थी जैसे कि मेरा क्लोजअप चल रहा हो। एंड सेम विद हुसैन, कई बार अकेले शॉट में हैं हम तो कहीं खड़े होने की जगह भी नहीं है तो भी वी वुड फाइंड प्लेस टू स्टैंड सो दैट जहाँ लुक है हमारा वहाँ आई कैन सी हिम एंड ही कैन सी मी, बिकॉज दैट आई कॉन्टैक्ट यूज्ड टू जस्ट जनरेट दैट इमोशन इन अस कि हम नेचुरली रो सकते थे, नेचुरली हंस सकते थे। सो इट ब्रॉट आउट द बेस्ट इन अस। तो इट वाज अ जर्नी। आई वुड से हुसैन और मैं एज एक्टर्स ग्रो किए टुगेदर। So Kumkum made us better actors and we helped each other grow a lot as actors. So it came very easily later. छाया का कैरेक्टर आपके कितने दिल के करीब है? चेतना सिंह wants to know. छाया का कैरेक्टर बहुत ही करीब है मेरे दिल के, वो इसलिए क्योंकि माँ बनने के बाद सबसे पहले तो मैंने पहला रोल वही किया। शनि मेरा पहला शो था और इसके पहले मैं अगर बच्चे को लेके कोई भी सीन्स करती थी तो मैं इमेजिन करके करती थी
लेकिन शनि पहला शो था जहां मुझे पता था कि अगर मैं उसके फेस पे ऐसे हाथ लगा रही हूँ तो वो करते समय एक माँ को कैसी फीलिंग होगी, और वो मदरली इंस्टिंक्ट मेरे अंदर बहुत नेचुरली आता था, मैं बहुत बेटर परफॉर्म कर पाती थी। इनफैक्ट छाया की और शनि की जो लोरी थी वो बहुत पॉपुलर हुई थी, और वो लोरी शूट करते हुए इनवेरिएबली एवरी सिंगल टाइम मैं रोने लगती थी, क्योंकि मैं समायरा को इतना मिस करती थी। मैं उमरगांव में होती थी, वो यहाँ होती थी और मैं उससे मिल नहीं पाती थी कि मैं वो लोरी शूट करते हुए रोने लगती थी। लाइक मैं जेन्युइनली इतना ज्यादा फील करती थी उसको। तो आई was able to perform better because I related to छाया as a mother। और उस वक्त जैसे शनि दूर होता था छाया से, ऐसी समायरा मुझसे दूर थी उस वक्त। सो मैं इमोशनल सीन्स में बहुत रिलेट करती थी छाया से। एंड अगर शायद मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं रियल लाइफ में माँ नहीं बनी होती तो शायद मैं छाया को उस तरह से नहीं प्ले कर पाई होती जैसा मैं कर पाई। ओके, जैसे आप कुमकुम के डेज की बात कर रहे थे कि बाद के सीन्स के लिए आपको ग्लिसरीन की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। व्हाट चेंज डू यू सी इन टुडेज टाइम? अगर न्यू कमर्स की बात करें या यू नो यंग जनरेशन जो काम कर रही है उनकी बात करें, क्या डिफरेंस आपको नजर आता है? सबसे पहले आई थिंक दे डोंट गेट इनफ टाइम टू गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। आजकल एक तो शोज, जैसे मैंने कहा कि मुझे 1 साल लगा कुमकुम के कैरेक्टर और मुझ में कोई डिफरेंस ही नहीं है इतना एक होने में। आजकल शोज इतने लंबे नहीं चलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली आई जस्ट फील दैट मे बी बिकॉज दे आर यंगर, नो आई थिंक आई वाज आल्सो एज यंग एज दे आर नाउ, बट I don't know the reason, but sometimes, not all, because it will be very wrong on my part to pass a comment which will be generalizing all of the actors. But some of the actors maybe become actors not for the love of acting, and then थोड़ा superficial रह जाता है। The ones who are in love with what they do, then they are par excellence and they do great performances. So generation wise ऐसा कोई फर्क नहीं है। अब जब मैं कुमकुम करती थी उस टाइम पे भी there were many actors who were not really that involved in their scenes, and there were someone who were very involved. So समय के साथ सोच थोड़ी बहुत ही बदलती है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट और अपने काम को लेकर ऑनेस्टी वो हर जनरेशन में सेम ही होती है। So it is very unfair to generalize it based on generation. I just feel that now they don't get enough time to understand the character simply because shows don't run that way. Right. Tamalika Basu wants to know, Juhi Di, how you guys come up with the idea of Manav Goyal's poem? This is brilliant one. Okay, first of all, it was not Manav Goyal's poem, it was Manish Goyal's poem. Manav Goyal has recited 2 lines in it like I did. Manish is a very good poet and he writes very well. और उन्होंने अनसंग हीरोज करके ये पोइट्री लिखी हमारे देश के उन सभी लोगों के लिए जो इस वक्त कोविड-19 के सिचुएशन में बाहर जाकर हम सबको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस हो, डॉक्टर्स हो, वॉचमैन हो या जो भी BMC वाले। So, उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम लिखी जिसके लिए उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि हम अब 2-2 लाइन बोल के उसे रिसाइट करें। So we have recited that, and the thought is completely Manish Goyal's, and the credit goes to him. टीवी इंडस्ट्री की बात करें तो जूही, आपको लगता है कितना डिफिकल्ट होने वाला है डेली वेज वर्कर्स के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए? शूटिंग जब शुरू होगी तो किस तरीके से शुरू होगी? जो एक्टर्स काम कर चुके हैं वो अपना पेमेंट किस तरीके से मांगेंगे? व्हाट इज योर ओवरऑल कमेंट ऑन दिस सिचुएशन, बिकॉज यू हैव बीन पार्ट ऑफ द यू नो। इस वक्त ऑनेस्टली सब यही सवाल सोच रहे हैं कि क्या होगा, क्योंकि हम इस वक्त उस जगह पर हैं ही नहीं जहां हम ये डिसाइड कर सके कि कैसे होगा सिनेरियो, कितने समय बाद काम शुरू होगा। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी बेटर दैट वी क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। राइट नाउ इंस्टेड ऑफ वरीइंग अबाउट क्या होगा, वी ऑल शुड पुट आवर एनर्जीज इन प्रेयर्स एंड विशेस दैट ये सब बहुत जल्दी खत्म हो जाए, चीजें दोबारा नॉर्मल हो जाएं। डेली वेजेस वर्कर्स जो है, जो बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम से इस वक्त गुजर रहे होंगे, उन्हें काम मिले पहले, क्योंकि हम फिर भी सरवाइव कर सकते हैं बहुत लंबे समय तक। अगर काम नहीं है तो एक्टर्स आर स्टिल इन अ मच बेटर पोजीशन देन द डेली वेजेस, यू नो, आवर कास्ट एंड अपार्ट फ्रॉम द कास्ट एंड क्रू, जो हमारे लाइन्समैन हैं, जो स्पॉट दादा हैं। सो इन लोगों के लिए वी शुड बी मोर वरीड, एंड आई want everything to come back to normal first for them. We still can wait for longer.
So I feel अगर पेमेंट्स क्लियर होने शुरू होंगे तो we all should collectively say that पहले इनके पेमेंट्स क्लियर होने चाहिए and then we can take the payment.